Yeah, so I think recording. Yeah, now recording has started. Hello, sir. Can you? Yes, please. So can you explain the introduction again? Last class I wasn't able to attend the class. Yeah, introduction about the Python. Yes, sir. Yeah, so we are. I will recap all the things. Okay, sir. Clear. So the Sir, and I you. downloaded the Python to PC. I downloaded the latest version. Is that fine, sir? Yeah, you can use any version. The latest one you can use. Clear. Yeah, so do you want introduction regarding the credit and the syllabus, all these things, or introduction of the first class? Introduction of the first class, sir, if you don't mind. Okay, yeah, clear. So we are starting from the very basics. So introduction of to computer science. So we have in the last class, we have discussed this. Clear. I think yesterday some student requested to explain in both language, English and Hindi. So do you also want the same thing? I'm fine Yes, with sir. Yes, English. sir. Please. So Yes, Hindi sir. would be fine Anything. for all of us, I'm sir. fine with both We can languages. understand Hindi. Okay, okay. So I will explain in both. Clear? Please. So yeah, introduction to computer science. Clear? So the basic things in computer science is in spite of the all the subjects, the basic thing is the development and analysis of algorithm. It is not the programming. The basic thing. Basic thing is the development and analysis of algorithm. Just an example. Suppose I will tell you how to cook a cup of tea. So when I told you a task how to cook a cup of tea, you must have a certain procedure in your mind. क्लियर आपके माइंड में कुछ एक प्रोसीजर्स होगा ना उस चाय को कुक करने के लिए सेम थिंग्स इन कंप्यूटर साइंस इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड नंबर एक इवन है या ऑड है तो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है ना आपके माइंड में कि आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन यू विल चेक द रिमाइंडर क्लियर इफ द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो देन नंबर इवन होगा अगर रिमाइंडर आपका जीरो नहीं है रिमाइंडर वन है तो आपका ऑड होगा तो एक सर्टेन प्रोसीजर्स होगा ना माइंड में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे ना वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही फिर आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे देन यू विल राइट इन अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम्स दिस एल्गोरिथम क्लियर and the study of this is called analyzing them clear so it is so jo this is the algorithm part is used everywhere from the basic things to the highest things so suppose this if you be talk about artificial intelligence clear artificial intelligence या database management system या graphics programming या networking या operating system security कुछ भी हो computer science में we need algorithm clear so algorithm development is just more than just programming it is just an information I think you might be aware Turing Award is generally recognized as the highest distinction in computer science. Clear? So Turing Award, if you go over the history, the father of Alan Turing is the name of the scientist. So Alan Turing के जो father थे वो इंडिया में civil servant थे when अंग्रेज was there. मतलब I think in 1850 I think around there. It is just an general question, no, not related to that. Okay. So introduction to computer science. So the field is divided into two category. We already have discussed all these things in the last class. So theoretical and practical. ठीक है आपका जो BCA है BCA is more about practical is not about the theoretical things here in the theoretical things I will give you one example like there is a problem in called mathematics of computer science or graph theory
So some researchers work on this. So we have more related to practical things. Clear? So generally हमारा theoretical part बहुत कम है. Theoretical, I'm not talking about theory part. Theory and practical discipline are two different things. थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस. तो आपका जो थ्योरी है दैट इज नॉट थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस. वो आप थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस इज डिफरेंट वेयर वी हैव टू प्रूव सम थिंग्स लाइक जैसे कि कोई भी थ्योरम है तो हमें उसको प्रूव करना है. तो ये आपका इतना अभी समझ में नहीं आएगा थ्योरेटिकल वाला. जब आप हायर स्टडीज में आएंगे तो समझ में आएगा. बस आप इतना समझिए कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल देयर आर टू कैटेगरीज. क्लियर? और दिस इज मोर इन हायर स्टडीज जहाँ पे हम कई सारी चीज़ों की प्रूविंग देते हैं. जैसे आप कई थ्योरम्स पढ़ेंगे मैथ में. मैथ सॉरी आपका मैथ तो है नहीं, मतलब कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे आप कंप्यूटर साइंस में आगे फर्दर ईयर्स में. तो उन थ्योरम की प्रूविंग कहाँ से आई, वो उनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़. Clear? So again, I'm repeating, algorithm and data structure are the heart of computer science. Algorithm मैंने अभी आपको बताया set of instruction, but set of instruction आपके feasible होने चाहिए. मैं ऐसा कहता हूँ कि आप स्पेस में कैसे जाएंगे, चांद पर कैसे जाएंगे, उस वहाँ पे भी जाने का प्रोसीजर है बट हम जा नहीं सकते. तो इसी तरह से कि मैंने कोई एक प्रोग्राम दे दिया बट वो feasible है कि नहीं, कि तो प्रोसीजर हर चीज का है बट एल्गोरिथम यू डोंट हैव एल्गोरिथम फॉर ईच एंड एवरीथिंग. जो फिजिबल होगा कंप्यूटर साइंस में उसी का ही एल्गोरिथम है. ठीक है? तो बेसिक्स क्या है, सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है. जैसे कि हम अगर इंग्लिश की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट से हम वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, उनकी ग्रामर होगी, उनके सिंटैक्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी हमारे पास कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए. तो सेम हम जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वी हैव सिंटैक्स, semantics, data type, variables, and many more things are there. Yeah. So similar to English language, for programming language also we must have grammar, we must have verbs like variables, their classes, keywords, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप, कई सारी चीज़ें होंगी हमारे पास. क्लियर? तो मैं वन बाई वन बताता हूँ आपको. जैसे कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, आप प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे, कोई एक एडिटर होगा. अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो वी हैव जुपिटर नोटबुक, वी हैव पाइथन सेल. अगर हम सिंटेक्स की बात करें, जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको प्रिंट अप स्टेटमेंट बताया, उसका कोई एक सिंटेक्स है ना, प्रिंट PRINT, आफ्टर दैट ब्रैकेट ओपन करना है. और अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप स्ट्रिंग लिखेंगे फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये एक सिंटेक्स है. अगर आप प्रिंट की स्पेलिंग, जैसे आप प्रिंट की जगह आपने प्रिंट एफ लिख दिया तो वो सिंटेक्स रॉन्ग हो गया. तो इसी तरह से देर आर सर्टेन सिंटेक्स. ठीक है? करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. क्लियर? डेटा टाइप, जैसे कि आपका इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, जैसे कि ट्रू फॉल्स है. तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं. टपल है, हम आगे पढ़ेंगे. तो डिफरेंट डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स हैं, कीवर्ड. कीवर्ड जैसे कि रिजर्व वर्ड होते हैं, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में. कीवर्ड मीन्स रिजर्व वर्ड. दैट मीन्स अगर जैसे आपको कोई वेरिएबल यूज करना है A=10, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप एक ही जगह के क्लास लिख दें, क्लास=10, वो आप नहीं कर सकते बिकॉज क्लास एक ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन के इंटरप्रेटर में. तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड, मतलब वो वर्ड रिजर्व्ड हैं. और वो वर्ड रिजर्व्ड हैं तो वो वर्ड हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, वी कांट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल. फिर बेसिक ऑपरेटर्स होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कई सारी चीज़ें आएंगी आपकी. ठीक है? बिटवाइज ऑपरेटर होंगे. बिटवाइज ऑपरेटर में लैब में डिस्कस करेंगे. डिसीजन मेकिंग अगेन ट्रू है कि फॉल्स है. लूप
लूप मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड को आपको कई बार रन करना है. सपोज यू वांट टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड फॉर 10 टाइम्स 20 टाइम्स, so that comes under the category of loops. फिर एरे आएगा, स्ट्रिंग, फंक्शन, तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट हैं. ये क्लियर है ना फ्रेंड्स यहाँ तक? यस सर. है ना? जैसे कि हमारा इंग्लिश है वैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इंग्लिश की सीखने के लिए हमें ग्रामर सीखनी है, उनके अल्फ़ाबेट सीखने हैं, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाने हैं, उनका सिंटैक्स ठीक होना चाहिए. ठीक है, तो वही सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मशीन? कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी. हाँ, Binary. कंप्यूटर, Binary. यस, या Binary, sir. कंप्यूटर, यस यस, कंप्यूटर से कंप्यूटर, या कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 और 1, नथिंग एल्स. बट हम आपको एक प्रोग्राम दें, आप प्रोग्राम वो एज ए 0 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि जैसे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड. क्लियर? अगर आपको वो प्रोग्राम मैं कहूँ मशीन लैंग्वेज में लिखना है, जो मशीन 0 1 समझती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा. दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. क्लियर? सो जो मशीन लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड 0 1. मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी डिजिट्स 0 1. इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर. सी, सपोज मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश आती है, किसी को स्पेनिश आती है, उसका सिस्टम स्पेनिश समझता है, मेरा सिस्टम इंग्लिश समझता है. हम दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो बीच में कोई एक ट्रांसलेटर होना चाहिए. सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश, द ट्रांसलेटर विल ट्रांसलेट इन स्पेनिश, देन द ट्रांसलेटर विल कम्युनिकेट, देन स्पेनिश वाला जो होगा वो बोलेगा, इस तरह से. ठीक है, तो अगर मुझे मशीन की लैंग्वेज आती है तो मुझे कोई भी ट्रांसलेटर नहीं चाहिए ना, अगर हम अपना प्रोग्राम बाइनरी में लिख सकते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर. एम आई राइट? यस और नो? यस सर. हाँ, Yes. Yes, sir. ठीक है. फिर मशीन लैंग्वेज के बाद आता है असेंबली लैंग्वेज. क्लियर? असेंबली लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज तो नहीं है, और आपने जो C++, पाइथन, ये लैंग्वेज देखी होंगी, ये ऐसी लैंग्वेज भी नहीं है. ये लैंग्वेज आपको मिलेगी, आपका अगर एक सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर. इन बीटेक देर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन थर्ड सेमेस्टर, एंड इन BCA आई एम नॉट श्योर. तो उसमें आपको ये लैंग्वेज देखने को मिलेगी. ये जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज होती है. जैसे आपको ऐड करना है, देन यू विल राइट ऐड A, B, तो A, B ऐड हो जाएंगे. अगर आपको A को स्टोर करना है किसी लोकेशन पे तो आप यूज़ करते हैं MOVE, मूव A. अगर आपको A को सिस्टम से लेना है तो आप यूज़ करते हैं LOAD, लोड A. तो वो इस तरह से लैंग्वेज होती है. तो मतलब ये इंग्लिश के फॉर्म में होती है. द असेंबली लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सो इजीली अंडरस्टैंडेबल. बट इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. यस और नो? करना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ. सो Yes, इन sir. असेंबली लैंग्वेज, जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है असेंबलर. उसका नाम है असेंबलर. असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या जो हार्डवेयर पे काम करते हैं, दे मे बी फेमिलियर विद असेंबली लैंग्वेज. आई एम नॉट फेमिलियर विद द असेंबली लैंग्वेज, बट आई नो लिटिल बिट because I studied computer architecture subject in computers in BTech third semester. But those who are background in electronics, and they might, if they are doing in research related to some basic things of hardware, all these things, then they might be familiar with assembly language. But हम computer science में rarely, मतलब आपको thousands में एक, मे बी 10,000 में एक मिलेगा जो assembly language से familiar होगा. ठीक है, या मतलब फेमिलियर होंगे बट नॉट टू मच, मतलब एक्सपर्ट नहीं होंगे, या कोई प्रोग्राम देने कहेंगे तो वो नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, सिंपल सिंपल लिख सकते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन. बट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होगा देन इट माइट बी डिफिकल्ट. तो इसके लिए हम वी नीड कन्वर्टर. क्लियर?
तो ये जो सारी लैंग्वेज हैं ये सारी आपकी ये दोनों लो लेवल में आ गई आपके, ठीक है। अब हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ अ प्रोग्रामर मीन्स यू एंड मी, हम दोनों प्रोग्राम, टू राइट प्रोग्राम्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि अब वो इंडिपेंडेंट हैं कंप्यूटर से हैं, ठीक है। सो हाई लेवल लैंग्वेज होगी। हाई लेवल लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज हाई लेवल, क्यों? बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन, बिकॉज दे आर क्लोजर टू अस and not closer to machine. They are not closer to machine, they are more closer to human. इसलिए हम उनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल मतलब दैट इज इन द लेवल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लेवल की है। हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज कंप्यूटर के लेवल से ऊपर है। So the high level language are considered as high level because they are closer to human language than machine language. ये क्लियर है ना स्टेटमेंट? Yes, sir. Clear? When writing a program in high level language, then the whole attention need to be paid to the logic. अब पूरा लॉजिक हमारा क्या होगा? पूरा लॉजिक जो हमारा अटेंशन होगा वो लॉजिक पर होगा प्रोग्राम के। लॉजिक जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इफ यू नीड टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, तो वो आपको लॉजिक पर होगा। क्या लॉजिक है आपका? कुछ भी, मतलब कुछ भी आपको करना हो, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कोई भी एक पैटर्न प्रिंट करो, कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे एक टावर ऑफ हैनोई एक प्रॉब्लम है, मैं कहूँ फाइंड परम्यूटेशन ऑफ अ नंबर, कुछ भी टास्क दूं मैं आपको, तो वो उसके लॉजिक पर हम फोकस करेंगे अब ज़्यादा। क्लियर? सो हमने पहले बताया आपको कि हमारा माइंड में क्या होना चाहिए, प्रोग्राम लिखने से पहले बी मस्ट हैव अ लॉजिक। जैसे कि मैंने सेकंड बैच में कराया है लैब में, कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, मैं आपको भी कराऊंगा बैच में डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी का देयर इज सम लॉजिक कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर वो उस लॉजिक को प्रोग्रामिंग फॉर्म में कैसे लिखना है, हम उस पर फोकस करेंगे अब, ठीक है। सो नाउ देर आर टू थिंग्स, आपको जब हाई लेवल लैंग्वेज है आपको उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी हो गई? जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन पढ़ रहे हैं, तो वो आ गई हमारी, और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हम जो जिसमें अपने प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्टर होता है, देर आर टू, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, कहीं से नॉइस आ रहे हैं। क्लियर? या सो जब हम व्हेन वी राइट अवर प्रोग्राम इन हाई लैंग्वेज, वी नीड आइदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्यों? टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल, जैसे कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। क्लियर? सो वी नीड व्हाट? ट्रांसलेटर। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, जैसे कि मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा एंड देयर इज सेकंड वन दो हु नो ओनली स्पेनिश, तो बीच में क्या होगा, वो मेरा इंग्लिश पढ़ेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, स्पेनिश में लिखेगा, फिर वो उसको दे देगा, तो उसका सिस्टम स्पेनिश समझ रहा है। समझ में है ना? तो जैसे कंप्यूटर बाइनरी समझ रहा है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 1, और वी आर राइटिंग अवर प्रोग्राम इन अवर लैंग्वेज, तो देर इज अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर कौन लिखते हैं? कंपाइलर इंटरप्रेटर होते हैं हम जैसे इंजीनियर्स होते हैं, मतलब प्रोग्रामर्स होते हैं। वो नई लैंग्वेज जब डेवलप होती है तो उस लैंग्वेज को जब डेवलप करते हैं देन दे मस्ट राइट दिस, ठीक है। वो मतलब कि उनका सिंटैक्स चेक करेंगे, सिमेंट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने एक लिखा प्रिंट रोहित अग्रवाल, फिर आपने 2 नंबर को ऐड किया, a = 10, b = 20, c = a+b, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो पहले सारे सिंटैक्स चेक करेगा वेदर वो करेक्ट है कि नहीं, कहीं पे कोई एरर है कि नहीं। अगर कोई एरर नहीं है देन द कंपाइलर विल कन्वर्ट अवर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो समझ में आया ना कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। मैं इनका डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपका जो सी है वो क्या यूज करता है, और सॉरी आपका पाइथन है वो क्या यूज करता है, एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या यूज करते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट। सो ये क्लियर है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? Yes, sir.
ठीक है, मैंने यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखे हैं। द हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, दिस इज इजी टू रीड एंड राइट and maintain as it is written in English like keyword. Clear? High level language are designed to overcome the limitation of low level language. Obvious सी बात है, क्लियर है। लो लेवल लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम ये है, पोर्टेबिलिटी भी नहीं होती है, किसी सिस्टम के लिए कुछ और है, किसी सिस्टम के लिए कुछ और। हम मेरे पास कोई और हार्डवेयर है एंड यू मस्ट हैव डिफरेंट हार्डवेयर, तो दोनों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बनानी पड़ेंगी। तो ये ओवरकम भी लिमिटेशन हो जाती, मतलब दूर हो जाते हैं। क्लियर? हाई लेवल लैंग्वेज इज पोर्टेबल, दैट मीन दिस लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है ना, ये समझ में आया पॉइंट आपको? ठीक है, अब देखो कंपाइलर्स के कुछ पॉइंट्स हैं। कंपाइलर का डेफिनेशन, इफ समवन आस्क व्हाट कंप्यूटर कंपाइलर आर इटसेल्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही होते हैं, दे आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं that translate or you can say compile source code. Source code means the code that we have written in our language, like हमने C programming यूज करी या Python जो भी यूज करी, ठीक है। सो सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ into a set of machine language instruction, machine language instruction। हेमंत आप क्लास में है? हेमंत, हेमंत नहीं है? हेलो, आपने व्हाट्सएप किया था ना, आपको थोड़ा क्लास मिस हो गई आपकी। हेलो हेमंत, आई थिंक नो, ही इज नॉट हियर, नो प्रॉब्लम, जस्ट मी लेट मी चेक हिज नेम अगेन। सर क्लास में है वो, बट बोल नहीं रहा है कुछ। अच्छा, ओके ओके, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना हेमंत, कैन यू अंडरस्टैंड? Okay, so into a set of machine language instruction that can be understood by digital computers. So the clear, this is compiler. Clear? Compiler, अब क्या कंपाइलर छोटा सा कोड होता है क्या? कंपाइलर इज अ वेरी लार्ज प्रोग्राम एक्चुअली, मतलब it is not a, see, you are writing a program and that compiler, what is compiler doing? Compiler the task of compiler is to check this program. After checking, the compiler will convert or translate this program into machine language. So this is not a small thing. So for generating a compiler, for writing a compiler, we need have a good programming skill, and compilers are very large programs. क्लियर? सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं इंग्लिश जानता हूँ, वो सेकंड पर्सन स्पेनिश जानता है, तो जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर इज अ knowledgeable person because he know English, he know Spanish, and he can also convert from English to Spanish. He can check all my English grammar, syntax, semantics, सब कुछ चेक करेगा, फिर वो स्पेनिश में लिखेगा। क्लियर है ना? तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर वेरी लार्ज प्रोग्राम होते हैं, एरर चेकिंग, अभी मैंने बताया, एरर चेकिंग एंड अदर कैपेबिलिटीज होती हैं। क्लियर? अगर आप लोग, सॉरी बीसीए में तो नहीं, कंप्यूटर साइंस में कंपाइलर एक पूरा सब्जेक्ट है, 5th सेमेस्टर में देर इज अ सब्जेक्ट कंपाइलर, सो उसमें एक पूरा सब्जेक्ट है और पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। वो बीसीए में आई एम नॉट श्योर, बट बीटेक में कंपाइलर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कंपाइलर अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो एक बहुत फेमस बुक है अहो अलमन की, एक राइटर है अहो अलमन। सो देर इज अ बुक, बट हमारा मतलब सिलेबस से आउट है ये इतना डिटेल में। ठीक, सो द प्रोग्रामर रन्स द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कंपाइलर, ऑब्वियस सी बात है, अप्रोप्रिएट कंपाइलर हम रन करेंगे, फिर हम फाइल का नाम देंगे और फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। हम जैसे कि पाइथन में आपको याद होगा, हम पाइथन में कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर होता है, तो आपने देखा होगा हम लिखते हैं पाइथन स्पेस करके फाइल नेम, याद है ना आपको फ्रेंड्स? हेलो, Yes, sir. या या Yes, sir. तो Yes. ये सब वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या करता है ये? प्रोग्रामर रन द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कंपाइलर स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ फाइल दैट कंटेन द सोर्स कोड, उसका नाम बस हमें स्पेसिफाई करना होता है और कुछ नहीं।
One condition that a compiler has to follow is the syntax of programming language must be used. अगर आप मान लो C का कंपाइलर यूज कर रहे हैं और अगर आपकी लैंग्वेज पाइथन है तो वर्क करेगा क्या? क्लियर? तो No. सिंटेक्स या तो वही है सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड. क्लियर है? इफ द सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्राम डज नॉट मैच तो क्या होगा, फिर कई सारी एरर्स आएंगी. जैसे कि आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट आपने किसी और लैंग्वेज का लिख दिया, आपने पाइथन में मिक्स कर दिया सी का प्रिंटफ स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर एरर आ जाएंगे आपके. सो वही चीज़ है. इट एनालाइज द एंटायर प्रोग्राम. हाँ, ये आपको नोट करना है. इट एनालाइज द एंटायर प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड. एंटायर प्रोग्राम आई एम फोकसिंग. क्लियर? इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है, वो एंटायर प्रोग्राम नहीं लेता है, स्टेप बाय स्टेप लेता है. क्लियर है? नाउ दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंपाइलर. और ऑल दीज स्टेप यू नीड टू लर्न इन डिटेल इन पाइथन इन कंपाइलर सब्जेक्ट. बट हमारा सब्जेक्ट नहीं है कंपाइलर, सो हम सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. सी व्हाट आर द स्टेप्स हेयर. स्टेप्स क्या हैं हमारे? सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है, ये पाइथन प्रोग्राम नहीं है, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, क्योंकि सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज करता है, पाइथन यूज इंटरप्रेटर. सपोज यू हैव दिस प्रोग्राम. क्लियर है? क्लियर? सो सबसे पहले टास्क क्या होगा कंपाइलर का? सबसे पहले कंपाइलर का टास्क होगा इनको इंडिविजुअल अलग अलग करना. ये इंट एक डिफरेंट थिंग है, मेन एक अलग है, फिर ये ब्रैकेट ओपन एक डिफरेंट थिंग है, ब्रैकेट क्लोज एक डिफरेंट थिंग है, फिर एक ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर एक इंटीजर है, फिर एक ए वेरिएबल है, फिर एक कॉमा है, फिर देयर इज़ अ बी वेरिएबल, फिर देयर इज़ अ सेमी कॉलन, फिर ए इज़ अ वेरिएबल, फिर देयर इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर 10 इज़ एन कांस्टेंट. सो सारी चीज़ें होंगी. देयर आर सम थिंग्स सिमिलर पाइथन में भी होगा, सिमिलर पाइथन में भी होगा. सो क्या होगा, लेक्सिकल एनालिसिस. इसमें क्या होता है, ये सोर्स कोड जो हमारा कोड है, ये कोड है. सो द सोर्स कोड स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सोर्स कोड इनटू एब्स्ट्रैक्ट फ्रैगमेंट नोन एज लेक्सिम. इंग्लिश में लेक्सिम्स क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज लेक्सिम? LEXEME. वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, या मे बी 2 वर्ड्स मिला के एक वर्ड्स बन जाता है कभी कभी. एम आई राइट? Those who are from English medium, they might know. Friends, am I right? Yes or no, कुछ तो बताइए. Yes, sir. ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट स्प्लिट होगा सोर्स कोड को. ये सर थ्योरेटिकल पार्ट है अपना, ठीक है, जो अपना प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, दैट वी विल डिस्कस इन अवर लैब. क्लियर? सो कंपाइलर क्या होगा, स्प्लिट क्या करेगा. आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं पाइथन, बट उसके बैकग्राउंड में क्या चलता है वी डोंट नो, बट दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो क्या करते हैं, जैसे आपने ये लिख दिया कोड, ठीक है, सो कंपाइलर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा सोर्स कोड को. स्प्लिटिंग ऑफ सोर्स कोड इनटू एब्स्ट्रैक्ट फ्रैगमेंट, मतलब अलग अलग कर देगा. ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं. क्लियर? सो हमारे जो टोकन्स होंगे, जैसे कि एग्जांपल में कीवर्ड, जैसे कि हमारा एक टोकन हुआ, ये टोकन है, ये सारे टोकन्स हैं, ये टोकन्स हैं, ये टोकन है, ये ब्रैकेट ओपन टोकन ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन, ये इंटीजर, ये सारे क्या होंगे, हमारे टोकन्स हो जाएंगे ये. ठीक है, टोकन्स आपके कुछ भी हो सकता है, इसमें कीवर्ड भी आ सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये सिंटेक्स चेक करेगा. सिंटेक्स मतलब कि वेदर दे हैव रिटन इट करेक्ट और नॉट. सपोज मैं INTT लिख दूं, तो कंपाइलर के पास उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है. सपोज जैसे कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल दूँ माई नेम की जगह माई नामे बोल दूँ, तो जो ट्रांसलेटर है वो कहेगा नामे क्या है, नामे, वो जो ट्रांसलेटर है वो नहीं जानता, तो वो एरर रेज कर देगा कि दिस इज द एरर इन योर स्टेटमेंट. सिमिलर सब कंपाइलर क्या करेगा, आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे एंड कोई प्रोग्राम में कोई भी गलती है, देयर इज अ एरर, सिंटैक्स एरर है, तो क्या करेगा कंपाइलर, वो एरर रेज करेगा, दिस इज द एरर एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आवर इंफॉर्मेशन.
Clear? So the token assigned are structure to form a abstract syntax tree. Syntax tree मतलब कि syntax check करना, syntax tree बनाएगा और फिर वो सारी error check करेगा. Errors in the syntax. Checked for errors in the. हाँ बताइए. Yes. ओके. क्लियर. फिर आफ्टर दैट क्या होगा, जब सिंटेक्स हम चेक कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, सिमेंटिक एरर. सिमेंटिक एरर मतलब होती है मीनिंगफुल. मतलब कि जैसे कि हमने मान लो कि लिखा a इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू b. तो ये सिंटेक्स तो ठीक है a इक्वल्स टू b, बट b की इंफॉर्मेशन ही नहीं है. आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स व्हाट आई एम सेइंग? सिमेंटिक एनालिसिस. एनीवन प्लीज से यस और नो. मैं नहीं तो फिर से एक्सप्लेन कर. हाँ सी. Sir, explain सपोज. this again, sir. हाँ सपोज वी हैव अ प्रोग्राम. ठीक है. प्रोग्राम में आपने लिखा a इक्वल्स टू 10. ठीक है. फिर आपने लिख दिया a इक्वल्स टू b. इसका सिंटेक्स तो करेक्ट है कि नहीं है ये सिंटेक्स? सर फिर a की दो वैल्यूज हो गई ना, ये तो फिर हाँ. हाँ नहीं, दो वैल्यूज हो सकती हैं. हम आप That's right. a को आप अपडेट कर सकते हैं. आपने पहले a इक्वल्स टू 10 लिखा, फिर आप बाद में a इक्वल्स टू 20 भी लिख सकते हैं. आप अपडेट कर सकते हैं a को. बट तो आपने फिर जब एक. लेटेस्ट हाँ. लेटेस्ट वैल्यू फिर लास्ट हाँ. वाली आएगी ना जो डालनी हाँ. है. हाँ लास्ट वैल्यू आएगी, लास्ट वैल्यू आएगी. बट बी क्या है? व्हाट इज बी? a आपने is तो बी equal को. to b is equal to a. नहीं 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 नहीं, आप कम कम ऐसा नहीं होता कब प्रोग्रामिंग में. ये मैथ में होता है, ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू ए है. ठीक है. तो फिर क्या होगा, ये कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं कर सकते. आपके ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू ए होगा. तो जैसे कि आपने लिखा ए इक्वल्स टू बी, तो फिर वो कंपाइलर कहेगा बी कहाँ है, वेयर इज बी. बी तो आपने डिफाइन ही नहीं किया. आपको एग्जाम्पल चेक करना है क्या? मैं आपको एग्जाम्पल Yes. दिखाता हूँ. मैं आपको एग्जाम्पल. हाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. आपको आई थिंक मेरा टर्मिनल दिख रहा होगा, कुछ वायलेट कलर की स्क्रीन होगी. PYTHON प्रोग्राम लिखूं मैं या सिर्फ टर्मिनल पे यूज कर लूं? सपोज जैसे आपने लिखा है एक. सपोज आपने लिखा ए इक्वल्स टू 10, अभी तो कोई भी एरर नहीं है. फिर आपने लिख दिया ए इक्वल्स टू बी. वो एरर आ गई क्या ना, बी इज नॉट डिफाइंड. बी तो आपने डिफाइन ही नहीं किया. यस और नो? Yes sir, yes. अगर अब आप लिख दें बी इक्वल्स टू Okay, sir. 20. अगर आपने लिख दिया बी इक्वल्स टू 20, फिर आपने लिख दिया ए इक्वल्स टू बी. अब ठीक है, अब चल गया. चल गया कि नहीं, देखिए आप. ठीक है. तो ए इक्वल्स टू जो बी लिखा था मैंने, दैट इज सिंटेक्स तो ठीक है. सिंटेक्स तो ठीक है, बट वो मीनिंगफुल नहीं है. जैसे कि मैं इंग्लिश में सिंटेक्स लिख दूं, आई वेंट ऑन द मून या आई वेंट ऑन द सन. वो इंग्लिश सिंटेक्स तो ठीक है, बट वो मीनिंगफुल है क्या? कोई मतलब सूर्य पे गया है? नो सर. No, sir. हाँ. मैं Yes, जस्ट sir. एक एग्जाम्पल. ठीक है. तो बस यही है सिमेंटिक मतलब, यही हुआ आपका. ठीक है. सिमेंटिक मतलब होता है मीनिंग्स. ठीक है. लाइक रॉन्ग वेरिएबल असाइन, सम अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, यूजिंग कीवर्ड. जैसे कि मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज कर लूँ, देखना क्लास इक्वल्स टू ए. क्लास इक्वल्स टू आ गया ना सिंटैक्स. वो कहेगा क्लास एक एक्चुअली क्या है कि कीवर्ड है, तो क्लास हम यूज नहीं कर सकते. अब मैं क्लास की जगह देखो कुछ और लिखता हूँ. देखो अब ठीक है कि नहीं फ्रेंड्स? यस सर. तो क्लास, बिकॉज क्लास एक कंपाइलर में डिफाइन है, वो रिजर्व्ड है. उसको यू कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम. वो अलग से उसका डिफरेंट मीनिंग है. यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर पर्पस बट नॉट एज अ वेरिएबल नेम. तो फिर यही आपका क्या हुआ, सिमेंटिक. अब देखो क्या होता है डायरेक्ट. जैसे वी हैव रिटन अवर प्रोग्रामिंग सपोज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. मैं सिर्फ कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी. क्लियर? हमने कोई भी जैसे प्रोग्राम लिखा तो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है, इंटरमीडिएट कुछ कोड जनरेट हो जाता है. समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मैंने इंग्लिश में कुछ एक पेज लिखा, वो स्पेनिश में ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो बीच में कोई एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा पहले. सपोज मैंने हिंदी में लिखा, तो फिर वो क्या करेगा, हिंदी से इंग्लिश करेगा, फिर इंग्लिश से स्पेनिश.
तो इसमें भी क्या होगा, कंपाइलर में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कुछ इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन जनरेट 2 और मोर इंटरमीडिएट कोड, कुछ कोड जनरेट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, डज एनीवन नो दिस? Does anyone know this? What is optimization? Please say yes or no. No, sir. अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सपोज मैंने कहा कि आपको अपने घर से बेनेट यूनिवर्सिटी आना है, आपको अपने घर से बेनेट यूनिवर्सिटी आना है, आप आ सकते हैं, ठीक है। बट मैंने कहा बेनेट यूनिवर्सिटी आना है शॉर्टेस्ट पाथ लेके, शॉर्टेस्ट पाथ लेके। तो जो कई सारे पाथ होंगे फ्रॉम योर होम टू बेनेट यूनिवर्सिटी, देयर माइट बी सर्टेन पाथ, 3 पाथ हो सकते हैं, 4 पाथ हो सकते हैं, बट हम शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो होगा ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होगा, हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ऑब्वियसली बात है, आप कार से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो कुछ आपका पेट्रोल बेस्ड होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन में मतलब क्या होगा कि हमें अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? सो हमने जैसे कोड लिखा, कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज कोई कोड लिखा आपने एंड दैट कोड इज टेकिंग 10 सेकेंड, अगर वो कोड है 10 सेकेंड ले रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने में, हम उसको ऑप्टिमाइज कर दें और मान लो वो 8 सेकेंड में आउटपुट दे दे। यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. है ना? Yes. तो वही होता है Yes, sir. ऑप्टिमाइजेशन, वही होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजेशन के बाद फाइनल स्टेप होता है कोड जनरेशन, मतलब फिर वो मशीन लैंग्वेज में जनरेट कर देना, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट कोड है, इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर ऑप्टिमाइज करने के बाद मशीन कोड में जनरेट कर देते हैं। तो ये कंपाइलर है आपका पूरा। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में सिर्फ ये वाला पार्ट बताया है आपको, ठीक है। सिंटेक्स एंड और सिमेंटिक वाला मैंने आपको बताया था अपना टर्मिनल ओपन करके, ए इक्वल्स टू बी। इंटरमीडिएट और ऑप्टिमाइजेशन वो हम छोटे से प्रोग्राम में नहीं दिखा सकते आपको, ठीक है, वी कांट शो। तो ये कंपाइलर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एटलीस्ट Yes. से यस और नो, या ठीक Yes, है, sir. या। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का दोनों का काम एक ही है। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, जो हमारा प्रोग्राम है, इनटू मशीन कोड। दोनों का काम सेम है, बट क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, सोर्स कोड, प्री कंपाइल्ड कोड, कुछ भी। एक डिफरेंस है दोनों में, मैं बताऊंगा। एन इंटरप्रेटर वर्क्स मोर और लेस सिमिलर टू कंपाइलर, मतलब लगभग लगभग सेम है वो दोनों चीजें। The only difference between their working is that interpreter does not generate any intermediate code. वो कोई भी intermediate code generate नहीं करते हैं, पहली चीज। रीड द प्रोग्राम लाइन बाई लाइन। देखो कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ चेक करके एरर दे देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन बाई लाइन चेक करके एरर दे देगा। अगर वो किसी एक लाइन में एरर आ गई तो उसके आगे नहीं जाएगा, बट कंपाइलर क्या करेगा, सारे प्रोग्राम में एरर चेक करके दे देगा आपको, ठीक है, एंड रन्स द प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। सो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज रिलेटिवली स्लो, ये स्लो होगा बिकॉज एनालिसिस टेक प्लेस एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन। क्लियर? अब हम पाइथन के बारे में आते हैं। इंटरप्रेटर के बारे में अगर थोड़ा और देखना है तो ये है। अभी हम पाइथन के बारे में आते हैं। पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्चुअली। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट आप उसको डीप में स्टडी करेंगे तो वो कहेंगे पाइथन इंटरप्रेटर है, बट वो कंपाइलेशन भी थोड़ा बहुत यूज करता है, ठीक है। इफ यू गूगल इट, गूगल में लिखा होगा पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर में तो इंटरप्रेटर यूज करता है, बट आप थोड़ा डीप स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ कंपाइलेशन आल्सो। सो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सो सर पाइथन, डजन इंटरप्रेटर मतलब इंटरप्रेटर का जॉब वही रहता है ना, जो हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको समझना है उसको, दैट इज हाँ व्हाट हाँ, इंटरप्रेटर इज। यस यस यस, वही है, वही है। इंटरप्रेटर का काम वही है जो कंपाइलर का काम है, बस थोड़ा सा उनका प्रोसेस डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मीन्स द सोर्स कोड ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या आ गया, एक नई चीज आ गई आपके में, ठीक है।
तो बाइट कोड मत मैं आपको एक प्रोग्राम में दिखा भी सकता हूँ, ये मतलब यू विल नॉट फाइंड दिस इन एनी बुक, आई कैन शो बाइट कोड क्या होता है। Yes, सो sir. मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ 2 मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। आपका टाइमिंग है, टाइमिंग है ठीक। सो बाइट कोड आपने कभी भी इस अभी भी पाइथन पढ़ी होगी, आपने कभी बाइट कोड देखा नहीं होगा, आई एम श्योर। आपने देखा है कभी बाइट कोड? No, sir, आपने नो never. सर। नहीं आपने sir. हाँ, आपने क्या देखा होगा, आपने पाइथन प्रोग्राम लिखा, आपने बस उसको रन किया, आउटपुट देखा होगा, बट इंटरमीडिएट बाइट कोड कभी नहीं देखा होगा आपने। एंड आई कैन शो क्लियर। सो क्या करते हैं वो इंटरप्रेटर, क्या करता है सोर्स प्रोग्राम को पाइथन, वो आप बाइट कोड चेक कर सकते हैं आप। मैंने भी इसमें थोड़ा टाइम अपना इन्वेस्ट किया, तब मुझे पता लगा कैसे बाइट कोड चेक करते हैं। क्लियर, दैट इज देन एग्जीक्यूटेबल बाय पाइथन वर्चुअल मशीन। नाउ व्हाट इज पाइथन वर्चुअल मशीन, एनीवन नो? No, sir. या देखो क्या होता है, आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा, कभी कभी देयर मे बी सम डिफरेंस व्हेन यू हैव राइट दिस प्रोग्राम फॉर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू, सो देयर इज सम डिफरेंस। सो पाइथन क्या करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन यूज करता है, और हम क्या करते हैं, हमने प्रोग्राम लिखा पाइथन में, बाइट कोड जनरेट किए, और फिर जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, जो इंटरप्रेटर एक तरह से, वो फिर क्या करते हैं, वो उसको आउटपुट प्रोड्यूस करता है हमारा। इसका बेनिफिट क्या है पाइथन वर्चुअल मशीन का, कि जो बाइट कोड है, बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट, मतलब आपका जो सेम प्रोग्राम विंडो में चल रहा है वो उबंटू में भी चलेगा। जैसे कि आपने कोई अगर जावा जा मतलब समवन इफ नो जावा, जावा वर्चुअल मशीन होती है, किसी को पता है जावा वर्चुअल मशीन? यस सर, यस सर, जावा वर्चुअल मशीन में आपने देखा होगा क्लास फाइल जनरेट होती है, डॉट क्लास, यस सर, नोटिस किया आपने? अगर आपको वो, अगर आपके पास वो क्लास फाइल है आपके पास, तो अब वो क्लास फाइल किसी और सिस्टम में भेज के आप उस सिस्टम में वो प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन है। तो सेम थिंग पाइथन में होती है। पाइथन में क्या होता है कि जावा वर्चुअल मशीन होती है, वही हमारे बाइट कोड से हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करती है, मतलब उसको नाम देती है वर्चुअल मशीन, मतलब वो एक तरह से हमारा प्रोग्राम ही है, इंटरप्रेटर ही है, पूरा पाइथन का सेटअप है, ठीक है। तो अब मैं आपको बाइट कोड दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये प्रोग्राम है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ, और मेरा इसको क्लोज, ये है टर्मिनल। आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस Yes, सर, sir. यस सर, यस सर। ये देखिए, ये मेरा मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, ये प्रोग्राम है, उसमें कुछ और ऐड करना है आपको, ए इक्वल्स टू, Equal to- ठीक है, अब मैंने ये ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया आपको, ठीक है। फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको अगर प्रोग्राम का आउटपुट देखना हो तो आप क्या करोगे, पाइथन लिखोगे आप, और ये हमारा जो भी है इसको लिख दोगे, अ, ये आपका आउटपुट आ गया, है ना आउटपुट, ये फाइनल आउटपुट आ गया, बट बीच का हमें बाइट कोड नहीं दिखा। ये सुनो फ्रेंड्स, मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस सर, अब देखो मैं आपको बाइट कोड दिखाते हैं कैसे कहते हैं, one. PYTHN पाइथन -m, ओके, या या मैंने अब ये सिंटेक्स यूज किया, ठीक है, मतलब ये एक कमांड। तो देखो ये हमारा आउटपुट भी आ गया, और साथ में कुछ और लिखा आ रहा है, एरर वाइल ट्राइंग टू दिस दिस दिस। अब मैं दिखाता हूँ, देखो अब मेरी डायरेक्टरी देखिए आप, ls -la, एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, आपने ये नोटिस किया, ये फोल्डर अभी क्रिएट हुआ है, देखो टाइम देखिए आप, इस पे पाइथन लिखा है, कैश है। हाँ ये देखिए टाइम देखिए, 12:24 अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, September 28। अब मैं आपको फोल्डर दिखाऊं या अपने ड्राइव में जाके, ये देखो ये नया फोल्डर ये है, देखा आपको फोल्डर ये दिखा फ्रेंड्स? ये यस सर, फोल्डर, Yes, ये sir. फोल्डर, Yes, sir.
ये फोल्डर पहले नहीं था, अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, अभी जस्ट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैं गया और इस फोल्डर के अंदर देखो ये आपका बाइट कोड है, ये है बाइट। मैं दिखाता हूँ आपको, ग्राफिकल दिखाता हूँ। ये मैं Ubuntu यूज कर रहा हूँ, ग्राफिकल। ये देखिए इसके फोल्डर है, दिख रहा है फोल्डर? इज इट विजिबल? यस सर, वी कैन सी इट। इसके अंदर गए हम, देखो ये एक नई फाइल जनरेट हो गई .pyc। इसका नाम क्या है? जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा था वो .cy पाइथन इसका वो पाइथन का वो है कंपाइलर इंटरप्रेटर, और .pyc तो पाइथन बाइट कोड ये जनरेट हो गया। अब इसका हम आउटपुट कैसे देखेंगे? इसका आउटपुट देखना थोड़ा टफ है, इसके हम पीछे जाएंगे और फिर हम यहाँ से अपना फिर से वो प्रोग्राम रन करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे DIS। ये देखिए ये इसका बाइट कोड है, ये बाइट कोड है। आप देखो पहले मैंने लिखा था प्रिंट रोहित, उसके बारे में ये है। फिर मैंने लिखा था कुछ A=2 करके, मैंने आपको याद हो असेंबली लैंग्वेज में बताया था, लोड बताया था, स्टोर बताया था मैंने। जस्ट आई डोंट थिंक आपने बताया तो हमें मैंने अभी जस्ट आज। एक एग्जाम सर मैंने ये बोला था ना, नहीं मैंने ऐसे दिखाया नहीं था, मैंने जस्ट आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज जैसी होती है। अगर आपको ऐड करना हो तो आप लिख देते हैं ऐड A, B। अगर आपको सिस्टम में स्टोर करना हो तो लिख देते हैं मूव A, सॉरी स्टोर A। सिस्टम से लेना हो तो लोड A। जस्ट मैंने एक ऐसे ही एक दो सेंटेंस बोले थे। तो आप देखना थोड़ा थोड़ा बाइट, हाँ तो देखना थोड़ा लगभग ऑलमोस्ट इट इज सेम बाइट कोड। तो ये आपका बाइट कोड है। ठीक है, इसकी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वी नेवर रिक्वायर्ड दिस, बट आई इफ यू वांट टू सी, मैंने ये आपको दिखाया है बस जस्ट। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कैन आई क्लोज दिस? Yes, sir. ठीक है, ये मतलब समझ लो कि आपने जो भी जैसे स्कूल में पढ़ा होगा वहाँ पे, जैसे कि जो मतलब जो डेप्थ है, मैं आपको वो डेप्थ बता रहा हूँ सिर्फ। ये बताइए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डेप्थ होती है ना, जैसे कि हम क्या उसका कंपाइलर है, कंपाइलर ने कोड जनरेट किया, क्या हुआ, जैसे कि पाइथन में क्लास फाइल जनरेट होती हैं, सी प्रोग्रामिंग में OBJ फाइल जनरेट होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा बता रहा था कि आपको आना चाहिए, बिकॉज अब आप कंप्यूटर साइंस में आ गए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो फिर यू मस्ट नो। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम कहाँ पे थे? सॉरी यहाँ पर थे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हमारा क्या है? हाँ, सो इंटरप्रेटर पढ़ रहे थे हम। तो इंटरप्रेटर, पाइथन इज यूजुअली कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अगर आप डीप में पढ़ेंगे, हाउएवर इट कंबाइंस कंपाइलिंग एंड इंटरप्रेटिंग, दोनों को कंबाइन करता है, हाउएवर लिखा है। व्हेन वी एग्जीक्यूट अ सोर्स कोड, हम एक कोई सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और फाइल का नाम क्या होता है? .py एक्सटेंशन होता है। जो भी आपका सोर्स कोड का वो फाइल नेम क्या होगा? फाइल नेम .py एक्सटेंशन। पाइथन क्या करता है? पाइथन फर्स्ट कंपाइल इट इनटू बाइट कोड, पहले वो बाइट कोड में कंपाइल करता है। फिर वो बाइट कोड क्या होते हैं? वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने अभी क्या बताया, जावा वर्चुअल मशीन का यूज, जो बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाएगा। यू कैन यूज दैट बाइट कोड इन माई सिस्टम, यू कैन यूज दैट बाइट कोड इन माई सिस्टम। और ओरिजिनल जो पाइथन फाइल है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट हो भी सकता है। मे बी मेरे सिस्टम में पाइथन का कुछ और वर्जन है, आपके सिस्टम में पाइथन का कुछ और वर्जन है, देन देयर मे बी सम डिफरेंस। ठीक है, सो ये बेनिफिट है। सो बाइट कोड इज अ लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट द बाइनरी, बट ये बाइनरी नहीं होते। मैंने अभी आपको मतलब इसको दिखाया है, शो किया है। इट इज नॉट बाइनरी एंड कैन नॉट रन बाई टारगेट मशीन डायरेक्टली। ठीक है, इनफैक्ट इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वर्चुअल मशीन। जो पाइथन की जो वर्चुअल मशीन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, वो जो बाइट कोड है दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन। और फिर जो वर्चुअल पाइथन वर्चुअल मशीन है फिर वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है? Sir, interpreted मतलब कि इंटरप्रेटर मतलब कि क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में।
मशीन कोड मतलब 01। मतलब डायरेक्टली कर देता है इंटरप्रेटर, बट हाँ कंपाइलर फिर ट्रांसलेट करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एक साथ करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है। ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, देन यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस। आप थोड़ा डिफरेंस पढ़ना, नेट पे 4-5 पॉइंट्स लिखे होंगे। जैसे कि आप दोनों की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस मैंने लिखा है द ओनली डिफरेंस बिटवीन देयर वर्किंग इज दैट इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट एनी इंटरमीडिएट कोड। क्लियर है? और ये चेक दूसरा स्टेटमेंट डिफरेंस क्या है? रीड द प्रोग्राम लाइन टू लाइन। मतलब जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, एक लाइन चेक किया, फिर उसने अगर एरर है तो उसको एरर को प्रोड्यूस कर देगा। बट कंपाइलर में क्या होगा? पूरा प्रोग्राम चेक करने के बाद वो एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो दीज आर द सम। और ये थोड़ा स्लो होता है, कंपाइलर थोड़ा फास्ट। सो पाइथन स्लो लैंग्वेज हो वो कंपेयर करें सी सी प्लस प्लस का हाँ, जावा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। कुछ स्टूडेंट को डाउट था कि पाइथन फास्ट होती है। मैंने कहा था गूगल करो आप, और गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि पाइथन इज स्लोअर देन सी। आप चेक कर लीजिए ये, मैं गूगल करके दिखाऊं आपको। ओके ठीक विच वन इज फास्टर, सर ये सी? पीडीएफ आप एलएमएस पे अपलोड करेंगे? हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा, मैं आपको सब कुछ दे सर दूंगा, आपने ही वॉट बोला एवर था वे। सी थोड़ा फास्टर है प्रोग्राम हाँ इसलिए। हाँ आज देखो। सर ये पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर सर टीम्स पे फाइल्स पे शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, आई थिंक रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको विजिबल रहते होंगे। हाँ हाँ सर। सर, सर Sir, रिकॉर्डेड we लेक्चर can हम भी see जब the रहते हैं। क्लिक recorded करते हैं तो lecture. हमें नहीं मिलता। अच्छा, मैं चेक कर लूँगा। मैंने मतलब कि कल स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, तो वो मुझे अवेलेबल रहते हैं। सर रिकॉर्ड तो हो जाता है बट वो नीचे आ जाता है, बट फिर हम वो खोल के देख नहीं सकते, वो थोड़ा इश्यूज बोलते हैं कि फाइल्स पे आ, जाते ही खुल जाता हाँ, आप अगर फाइल्स में इसी टीम्स के इसमें फाइल्स में डाल दोगे ना तो हम एक्सेस कर पाएंगे शायद से। है। कल का भी ओ, सर हो गया था एक्सेसिबल, तो उसी तरह डाल दिया सर आज भी। ठीक है ठीक, हाँ मैं डाल दूंगा वो। ठीक है। तो ये जो मैंने बाइट कोड का प्रोसीजर है दैट आई हैव रिटन हेयर। ठीक है। जो बाइट कोड जनरेट करने का प्रोसीजर है दैट आई हैव रिटन। क्लियर? सो फ्रेंड्स, सर बाइट कोड की जरूरत तो नहीं पड़ती ना वैसे, नहीं मतलब। नहीं नहीं नहीं, बी डजन रिक्वायर। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा डेप्थ बताया है। डजन रिक्वायर, आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था। और मैं नहीं चाहता था कि, मैं चाहता हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट है बट विजुलाइज हो जाए, दैट इज़ बेटर फॉर मी। मैं सिर्फ विजुलाइजेशन दिखा रहा था आपको। अगर आप पढ़ेंगे बुक्स में दैट दे हैव ऑलरेडी रिटन, वो ओके जनरेट सर। करता है बाइट कोड, बट वो बाइट कोड क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं होगा। सो आई जस्ट वांट टू शो दैट। ठीक है ना? सो आफ्टर दैट वी हैव लैब 340, सो वी विल मीट इन द लैब फर्स्ट बैच। ठीक है फ्रेंड्स? Okay, sir. ओके सर। Okay, so yeah, we will meet in the lab, and in the lab we will discuss our lab part. In clear, so all these things we will discuss in our lab. And for batch 2, we have yesterday discussed everything. So bye. Then we will थैंक यू meet. सर। थैंक यू Thank सर। you. थैंक यू And सर। you, yeah, थैंक यू if you सर। have Thank you, yes, sir. if you have any Okay. feedback like what I need to change in teaching, then please you can suggest me. Seriously, Yeah. sir? If you have any suggestion or any feedback to change in my teaching or something, I need to add something or I need to eliminate something, to just let me know, because we have yes, so we had only 2 classes till now, so it is better for me to know what you want, what is your expectations. Clear? Sir, today in Seriously, lab, sir? will you ओके teach सर। from scratch, sir? Sorry. Will you teach from the basics today in lab? हाँ, लैब में हम प्रैक्टिकल पार्ट पे करेंगे। हाँ, बेसिक से करेंगे बट प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रोग्राम Yes, sir. लिखेंगे। That's what I'm asking. Just हाँ, right from the basics, will you या teach या us वी today? विल, या वी विल स्टार्ट फ्रॉम Oh, द बेसिक। so so when will we finish with the like basic stuff? Because I've done most of the stuff already in 12th. या वी विल डन ऑल बेसिक थिंग्स बिकॉज आई नीड टू Yes, कैरी I know, ऑल but स्टूडेंट। when will we finish this? I was asking आई the जस्ट basic stuff. ओनली आई थिंक 1 hour।
Please teach from the basic which you taught on Thursday. Yeah. I will continue. I will start from the basic. Don't no worry. Or those who are familiar with the Python, they can start a project. My advice is just any image processing project, machine learning, any project you just search and start working on it. Clear? Yeah. Bye. Yes, sir. Bye, sir. Bye. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.